Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. Today, date is 1st July 2021 and I am teaching you chapter number 4 and name of the chapter is Plants, Our Green Friends. Now see student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So what we have done in our previous video. So in the previous video we discussed the function of stem, that is it keeps the plant upright and straight, it carries water to different parts of the plant. But stem, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना बेटा. Which part of the plant absorb water and mineral? That is root. But root is in the soil and this root is attached with the stem. Is it clear? This root is at the base, roots are attached with the stem. So function of absorbing water and mineral, that is of a roots. They absorb it and then they pass to the stem, and then stem pass to all parts of the plant, to the leaves, because water is required at the time when the plant prepare their own food. Okay, and after that even I explained you. And another important function of the stem is also the stem, it also carry the food made by the leaves to different parts of the plant. ठीक है, for the growth and development of the plant. जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी, our body is made of different parts. So we eat food and all parts of our body need energy to do work. In the same manner, the food which is prepared by the leaves, so what is the role of the stem? It carries that food to all parts of the plant. प्लांट के सारे पार्ट्स में उस फूड को पास करने का काम कौन करता है? स्टेम करती है. ठीक है. इन द सेम मैनर स्टूडेंट, देयर आर सम स्टेम्स आल्सो विच कैन स्टोर द फूड. जैसे आप शुगर केन, गन्ना बहुत खाते हैं छोटे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है. या तो फिर आप समर डेज में हम लोग जूस पीते हैं. ठीक है. सो शुगर केन आपको सबको पता है, गन्ने को बोलते हैं पोटैटो या फेवरेट. इज इट क्लियर? जिंजर किसको बोलते हैं बेटा? अदरक को बोलते हैं. सो आपके जो पोटैटो हैं, ठीक है, आप पोटैटो और जिंजर, ये क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम है. तो ये स्टेम, बट दे वी टेक इट आउट देम फ्रॉम द सॉइल, इसलिए इन्हें अंडरग्राउंड स्टेम बोला गया है. ठीक है. दैट इज द रीजन. आपने एग्जांपल दिया है पोटैटो, जिंजर एंड शुगर. यस, दे ऑल आर स्टेम. बट पोटैटो और जिंजर की अगर बात करें तो पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड ठीक है. पोटैटो एंड जिंजर, they both are underground stem which we eat. Okay, and after that student, I started teaching you about the leaf. So in previous video even I draw the diagram of the leaf also. So today I am not going to draw it again.
if you want to see again detailed study, if you want to see what is the structure of a leaf, so you can watch the previous video, because I have already explained that. Today I am only doing the recapitulation. That is the reason today I am not going to draw a diagram of a leaf. Just I do little recapitulation what we have or what I explained you about the leaf in the previous video. So after drawing a leaf, I tell you the thin broad part is of the leaf. The thin broad part of the leaf, that is known as leaf blade, or you can also say it as a lamina. ठीक है? And all the leaves have one main vein. Is it clear? All the leaves have one vein, and other side veins are attached to that. That is known as side vein. Is it clear? For example, this flat part of leaf is known as leaf blade. Okay? In all the leaves there is a main vein. This is main vein, and from this main vein many side veins are attached. So these veins are known as side, because it is in the center, main vein, and this is known as side vein. So they distribute food and water. Is it clear what role they play? These side veins are just like a tubes. जैसे आपको अपने गार्डन में प्लांट्स को वाटर डालना है, तो आप क्या करते हो? यू टेक ए पाइप, ओपन द टैप, and with the help of that pipe you can water the plants in your garden. So these side veins are also just like a tube, and they distribute water and food. Is it clear? So this is the structure of a leaf. I have already discussed with you. And these side veins, they carry water, because water is required by the leaves in the process of photosynthesis. Okay, water is required by the leaves in the process of photosynthesis. That is the reason through these veins it carry water to the leaf. Now next topic which we will discuss today, that is the function of a leaf. Functions of leaf. Okay, today topic, that is the function of a leaf. Now see, the leaf is also known as, when we are talking, because leaf is that part of the plant, when we are talking about the parts of plant, parts of plants. Is it clear? When we are talking about the parts of a plant, then roots, stem, branches, leaves, बर्ड्स जो कलियां आती हैं, फूल डायरेक्ट नहीं खिलते, पहले कलियां आती हैं बेटा, उसमें से सेपल्स ब्रेक हो जाती है और पेटल्स, जो खूबसूरत फ्लावर है, वो हमें दिखने लगता है. ठीक है? सो लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स and fruit. So these are the part of the stem, part of the plants, which I have already explained you. And there are two systems in plants. System, how many system? One is root
system and another is known as shoot system. Okay, there are two systems, that is root system and shoot system. Now see, when we are talking about the parts of plants, so root, stem, branches, leaf, buds, flower, fruits, these are the part of the plant. But this part of the plant which I circle, that is the leaves. So these leaves are known as food factory, food factory of plants. Is it clear? These are known as food factory of plants, or you can also say it as a kitchen, kitchen of the plants. Is it clear? फूड फैक्ट्री, बिकॉज फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या होती है बेटा, जहाँ पे कोई चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। मान लो बिस्कुट की फैक्ट्री है तो वहाँ बिस्कुट्स बनते हैं, चॉकलेट की फैक्ट्री है वहाँ चॉकलेट बनती है, खाने की भी हो सकती है और दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो दैट इज द रीजन लीव्स को किससे कंपेयर किया है, फैक्ट्री, फैक्ट्री में चीजें बनती हैं। तो लीव्स इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन प्रिपेयर द फूड। लीव वो पार्ट है प्लांट का जो फूड प्रिपेयर करती है, इसलिए लीव्स को कंपेयर किया गया है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। और यू कैन आल्सो से, और यू कैन आल्सो से किचन ऑफ द, you can also say kitchen of the plants। चल स्पेलिंग गलत हो गई थी, दिस इज द राइट स्पेलिंग। यू कैन आल्सो से किचन ऑफ द प्लांट्स, बिकॉज आप लोग ने देखा होगा कि आपकी मम्मी लोग खाना कहाँ बनाती हैं, किचन में बनाती हैं, ठीक है। क्योंकि किचन एक हमारे हाउस की ऐसी जगह होती है जहाँ ऑल द थिंग्स, ईटेबल थिंग्स जिन्हें हम खाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती हैं, एंड इवन गैस सिलेंडर, ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट। what is required at the time of cooking, everything is present in the kitchen, so that is the reason इसे kitchen of the plants भी बोला गया, ठीक है। so अब सारे पार्ट्स मैंने लिख दिए बोर्ड पे, एक रिकैप्चुलेशन ले लेते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीव में मैंने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट, टू सिस्टम्स होते हैं प्लांट्स में, दैट इज रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। ओके, आउट ऑफ दीज पार्ट लीव्स is the only part which can prepare the food, ठीक है। leaf is the only part which can prepare the food, that is the reason हमने leaves को क्या बोला, food factory of plants बोला, और you can also say kitchen of the plant, ठीक है। तो अब यहां तक आप लिख लो। Now see, one by one we will discuss the process by which leaves can prepare their own food. Is it clear? So the process by which you can write or you can underline it also, a leaf makes food for the plant with the help of air, water, and sunlight. This is
called it photosynthesis. This process is known as photosynthesis. See, a leaf makes food for the plant with the help of air, water and sunlight. This is called it photosynthesis. This process is known as photosynthesis. ठीक है. So I want, for example, one by one we will discuss all these things. See, in class 3 it is directly given in the leaves. Now try to understand. First of all आप leaf की बात हम लोग करते हैं, because leaves prepare food. Leaves prepare food for the leaves prepare food for the plants. Leaves prepare food for the plants. So what is the present? What special thing is present in the leaf? So student, color of leaves is green due to the presence of a pigment that is known as chlorophyll. This is very important thing for you. Chlorophyll. Is it clear? Color of leaf is green, and what is the reason? This is due to the presence leaf में होता है, ये सारी leaves में होता है, and this pigment is known as chlorophyll. Is it clear to all of you? And leaves में टाइनी पोर्स होते हैं. देखो लीव्स की क्वालिटी हम तुम्हें पहले बता देंगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि लीव्स हाउ दे कैन प्रिपेयर द फूड. आपकी क्लास 3 में डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है. लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि लीफ में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं जिससे फूड बन रहा है, तो आप इसको सीधे डायरेक्ट बस क्रैम कर जाओगे, ठीक है. तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए. क्लोरोफिल प्रेजेंट है किसमें? लीव्स में. और लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं. इनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है. लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है. यू नोट डाउन इन योर रफ कॉपी. जो ईवीएस की रफ कॉपी है ना बेटा, आप इसमें एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट कर लेना. Leaves prepared food for the plants. Color of leaf is green due to chlorophyll. और tiny pores जो होते हैं leaves में present होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं. क्या बोलेंगे इनको? स्टोमेटा बोलेंगे. Is it clear? अब next. अभी मैंने आप लोग को डेफिनेशन में लिखवाया था लीव्स को. व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय द लीव्स? सो थिंग्स रिक्वायर्ड बाय लीव्स टू प्रिपेयर थिंग्स रिक्वायर्ड बाय लीव्स टू प्रिपेयर फूड. आपने अभी जस्ट इससे पहले जो मैंने रब किया उस डेफिनेशन में था, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड? एयर, वाटर, सनलाइट. एयर, वाटर एंड सनलाइट. And chlorophyll is not given because chlorophyll is present in the leaves. आ गई बात समझ में? Chlorophyll play a very important role. I just explained you, but in the definition we required air, water and sunlight. Okay, air. As we know that air is a mixture of gases.
एयर में बहुत सी गैसेज हैं. सो द गैस विच इज रिक्वायर्ड बाय द लीव्स टू प्रिपेयर द फूड. सुनो, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट यही है पूरा. एयर बोला है, अब आप लोग, एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, एयर में तो बहुत सी गैसेज हैं. सो विच गैस इज रिक्वायर्ड बाय द लीव्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. Is it clear? So carbon dioxide. Is it clear? Now, which gas is required? That is the carbon dioxide gas. See, our living gas is what? Oxygen. So as we know that in the beginning of the chapter, I explained you why these plants are very important to us. Because प्लांट इज द ओनली प्रोड्यूसर मस्ट, प्लांट ही फूड बना सकते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, अपने फूड के लिए वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स. एंड आवर लिविंग गैस दैट इज ऑक्सीजन, एंड वी आर गेटिंग दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स. हु गिव अस ऑक्सीजन? प्लांट्स. इज इट क्लियर? सो दैट इज, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन द सेम मैनर स्टूडेंट, प्लांट्स आर आल्सो डिपेंड ऑन अस. देखो, हम ह्यूमन बींग्स हैं. व्हेन वी ब्रीथ इन, वी टेक ऑक्सीजन इन, एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, देन विच गैस कम आउट? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस गैस इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड. इज इट क्लियर? नाउ दे डोंट हैव नोज लाइक अस. अगर आपसे कोई बोले बेटा कि आप एयर कहाँ से लेते हो, सांस लेते हो तो कहाँ से लेते हो, तो आप तुरंत बोलोगे नोज से लेते हैं. अब इससे डीप नहीं जाएंगे हम. नोज से लेते हैं, फिर नोज से विंड पाइप में जाएगा, लंग्स में जाएगा, वो बस जस्ट आई एम सेइंग कि हम लोग एयर लेते कहाँ से हैं. सो फ्रॉम आवर नोज वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ओके. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, फ्रॉम वेयर द प्लांट टेक एयर, और एयर में उसे कौन गैस चाहिए? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो हाउ द प्लांट टेक इट? दे डोंट हैव नोज लाइक अस. तो मैंने अभी जस्ट लिखवाया था, टाइनी पोर्स होते हैं प्लांट्स में. टाइनी पोर्स किस में होते हैं? लीव्स में. टाइनी पोर्स ये किस में? आपके लीव्स में. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा? आपके लीव्स में प्रेजेंट है. और यही, और जिसे हमने आपको क्या बताया था, टाइनी पोर्स का नाम बताया था स्टोमेटा. स्टोमेटा. ठीक है, टाइनी पोर्स का नाम क्या बताया था बेटा आपको? स्टोमेटा. तो स्टोमेटा में यही क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. ठीक है. प्लांट्स, व्हेन प्लांट प्रिपेयर फूड, इट टेक अ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड विच, जैसे हम सांस लेते हैं ना एयर, तो ऑक्सीजन जाती है अंदर, एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट. इन द सेम मैनर व्हेन स्टोमेटा, दीज आर द टाइनी पोर्स, यहीं पे गैस एक्सचेंज होती है. तो अब आपसे कोई पूछेगा कि प्लांट, ये स्टोमेटा कहाँ होता है? वेयर इज द स्टोमेटा प्रेजेंट? तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स में, प्लांट्स की लीव में, क्योंकि प्लांट्स के लीव में स्टोमेटा है. ये टाइनी पोर्स हैं. ठीक है. तो अब यहां से एयर ले रहा है, कौन ले रहा है? प्लांट. और ये कहाँ पे है? लीव्स में है. तो यहां से जब वो एयर लेता है, क्योंकि प्लांट, बिकॉज लीव रिक्वायर्ड विच गैस? कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब लेता है तो आउट क्या होता है? इट रिलीज ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हमें मिलती है. दैट इज द रीजन मैंने बोला स्टोमेटा क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू prepare
प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड, हो गया। एंड नेक्स्ट, प्लांट्स रिलीज, उसने टेक क्या की, देखो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नोट डाउन इन योर ईवीएस रफ कॉपी, तभी तुम लोग को पूरा टॉपिक एकदम क्लियरली समझ में आएगा। इज इट क्लियर? नहीं तो ऐसे तुम लोग सिर्फ क्रैम कर जाओगे। प्लांट जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसमें होता क्या क्या है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट इन योर ईवीएस रफ कॉपी, डोंट राइट इन क्लास वर्क कॉपी, make one separate EVS rough copy and you can note down this important point from the board so that it gives you better understanding of the topic, इससे आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड एंड प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। आई होप अब पूरी क्लास के समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन अब हमें प्लांट से कैसे मिलती है, हो गई क्लियर बात, क्योंकि हमारी लिविंग गैस क्या है, ऑक्सीजन है। एंड हाउ वी आर गेटिंग ऑक्सीजन, क्योंकि जब लीज फूड प्रिपेयर करती हैं सो दे रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कहां से इंटर होती है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा टाइनी पोर्स, जो छोटे छोटे पोर्स हैं, किसमें है, लीव्स में है। तो यहां से वो गैस इंटर करती है और कौन गैस आउट होती है, दैट इज ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज आवर लिविंग गैस। तो एयर का पूरा मैंने बता दिया आपको, क्योंकि एयर चाहिए ना, तो एयर, प्लांट्स लीव रिक्वायर्ड एयर, तो तुम लोग पहले आप बुक में डायरेक्ट बोलोगे लीव रिक्वायर्ड एयर, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एयर क्या है बेटा, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज है, बहुत सी अलग अलग गैसेज हैं एयर में। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि एयर में से कौन सी गैस प्लांट को चाहिए, तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको ये नहीं पता था, जैसे आपको अपने बारे में पता है कि आप अपने नोज से ऑक्सीजन लेके जाते हो, तो प्लांट्स कहाँ से ले जाएंगे, तो प्लांट्स की लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो इस स्मॉल स्मॉल जो ओपनिंग्स हैं, ठीक है, टाइनी पोर्स हैं, इन स्मॉल ओपनिंग से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इन करते हैं, और आउट किस गैस को करते हैं, ऑक्सीजन को करते हैं, ठीक है। तो आई होप पूरी क्लास को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एयर का पॉइंट पूरी क्लास को आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट जरूर कर देना। मैंने फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, एयर। अब एयर में कौन सी एयर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम वेयर दे टेक, लीव्स में टाइनी पोर्शन जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सेंटर है, क्योंकि यहाँ प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, इन कर रहा है, और रिलीज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस। रिलीज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस। आई होप यहां तक सबको आ गया होगा समझ में, जितनी बातें आपको बताई मैंने, ठीक है। सो नाउ आई रब दिस, सेकेंड टॉपिक लेते हैं वाटर, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक एयर क्लियर कर दिया, सेकेंड टॉपिक अब लेते हैं वाटर। वन बाई वन, ओके। सेकेंड इज द वाटर। तो आपको पता है वाटर, प्लांट का कौन पार्ट है जो वाटर ऑब्जॉर्व करता है, दैट इज रूट्स। बट रूट्स आर इन द सॉइल। अब यहां से देखो, रूट्स आर इन द सॉइल, रूट आर दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड। तो ये कहां है, सॉइल में है। तो रूट्स वाटर और मिनरल ऑब्जर्व कौन करता है, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स आर
absorbed are absorbed by roots. Okay, we will continue this topic in the next video.